आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स सीरीज में आज नॉर्मल कर्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गिवन मीन 49.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.3 फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज द स्कोर ऑफ 80 into Z or sigma score. So we have to change it into Z or sigma score. So as I said always कि before solving any problems first of all write the formula. सबसे पहले फार्मूला लिखने से हमें पता होता है कि किस चीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्या क्या चाहिए हमें और किसको कहाँ लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन फार्मूला दैट इज जेड और सिग्मा स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम divided by sigma, where it is given x is given 80, m is given 49.5 and standard deviation is given 14.3. So we have to find the value of z. So अब फॉर्मूला हमने लिख लिया z is equal to x minus m divided by sigma. So we have to put the formula. So z is equal to x is given, it is 80, m is given 49.5 and standard deviation is given 14.3. Okay, so we have to solve this. So when we subtract 49.5 from 80, what we get? We will get 13.5 divided by 14.3. Okay, so our answer will be, if you divide it will be 2.13. so the value of z is equal to 2.3 is our answer. Okay, this is our answer. Next question is similar, but we have to find different thing. So formula will be same. Given m is equal to 48, sigma is 8, convert z score of the value 0.625 into raw score. So m is given, sigma is given and z is given. What we have to do? We have to find x. Okay, so what is z? Z is given 0.625 is equal to x. We have to find x. M is 48 and sigma is 8. So what will we do? How will we find? So we will do cross multiplication. So it will be 0.625 into 8 is equal to x minus 48. We take x this side, so it will be x is equal to 0.625 into 8 plus 48. Okay, so the value of 8 we will get. So first we multiply 8 5 ja 40, 8 2 ja 16, 4 20, 8 6 ja 48, it is 50. So since decimal is after 3 digits, so it will become 5 and it is 48, 5 plus 48. So x will be 53. So therefore x is 53. We got the answer. We had to find x, so we got x. This is the answer. Next question. A student obtains, two subjects are given, x1 and x2. x1 is maths and x2 is English. So it is given, x1 is given 80 and x2 is given 50. Then the next line says if the mean and standard deviation for scores as m1 and m2, here m1 and m2 it is mean, so it is given 70, and it is 30, and sigma 1 and sigma 2 has been given as 20 and sigma 2 is given as 10.
So we have to find out which subject he did better. यहाँ क्या है, 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उनका मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. हमें कैलकुलेट करके बताना है कि किस सब्जेक्ट में उसने अच्छा स्कोर किया. किसी स्टूडेंट का स्कोर मैथ्स और इंग्लिश का दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में उसने अच्छा स्कोर किया. तो जेड स्कोर हमें फाइंड करना है मैथ्स के लिए. तो जेड इज इक्वल टू जेड1, इसको हम करते हैं ऐसे x1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई sigma 1. So all things are given. It is x1, m1 and sigma 1. So x1 is 80, we have written here. M1 is 70, we have written here, and sigma 1 20. So after writing this, we got this 80 minus 70 divided by 20. So we got 10 by 20. When we divide 20, so we will get Z1 is 0.5. Z1 का वैल्यू क्या मिला? 0.5. और Z2 का स्कोर, Z का स्कोर इंग्लिश में क्या होगा? तो इंग्लिश में भी इसको हम इस तरह से अभी कर देते हैं Z2. तो हालांकि Z1 Z2 होता नहीं, इसलिए Z का स्कोर निकलेगा x2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2. So x2 is given 50, we have written 50. M2 is given 30, we have written 30. x2 minus m2, 50 minus 30, and sigma 2 is given 10. Okay, so sigma 10 and sigma 2 is given 10. So 50 minus 30 divided by 10. So what we got? 20 by 10. So our score came Z2. So for x2, Z score is 2, and for English Z score is 2, और for maths Z score is 0.5. तो क्या है, 2 जो है 0.5 से ज़्यादा है, 2 is greater than 0.5. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि इंग्लिश का स्कोर 2 है और मैथ्स का स्कोर 0.5 है. ठीक है, तो स्टूडेंट ने किसने अच्छा किया? इंग्लिश में अच्छा किया. नाउ अब नॉर्मल कर्व से एक सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लिखा हुआ है इन ए सैंपल ऑफ 100 केसेस. ठीक है, 1000 केसेस, द मीन ऑफ टेस्ट स्कोर इज 14.5 और एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.5. एज्यूमिंग नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल मानते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेल शेप्ड होता है ना. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 12 and 16. ठीक है, तो Z दिया हुआ है. Z ये क्या है? 12 and 16 क्या है? Z स्कोर दिया हुआ है ना. X दिया हुआ, सॉरी X, एंड तो इट इज वी हैव टू कैलकुलेट. सो इट इज गिवन Z score equivalent to 12. So we have to calculate x minus m divided by sigma. So it is x is given 12. Black pen से ज़्यादा दिखता है. So x it is 12 minus m is given 14.5 and sigma is given 2.5. So 12 is equal to, और क्या होगा इसके बदले में? फिर हम क्या लिखेंगे? इसको हम Z स्कोर, ये हो गया 14 माइनस 5 को हम 2 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 2.5 और नीचे 2.5. सो ये कट जाएगा तो क्या आया? -1. ठीक है, ये आया हमें -1 सिग्मा. ये आंसर हमें मिला इसको सॉल्व करने से. अब इसे हमें नॉर्मल कर्व में दिखाना है, इसलिए दोनों का स्कोर पहले निकालना होगा. सो व्हाट वी गॉट? -1 सिग्मा. अब Z स्कोर इक्विवेलेंट टू 16 के लिए हमें क्या करना है? यहाँ x क्या दिया हुआ है? 16. ये इसका इक्वल टू 16 खोजने के लिए हमें x दिया हुआ है 16, m दिया है 14.5. ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने
14.5 or standard deviation is given 2.5. So it is 16 minus 14.5 is equal to 1.5 and divided by 2.5. So if we divide, what will we get? We will get 25 6 जा 150 ना, so it is 0.6 सिग्मा. ओके, अब हम क्या करेंगे कि एक सिग्मा का वैल्यू देखेंगे. ठीक है, एक सिग्मा का -1 सिग्मा का नॉर्मल कर्व के टेबल पर वैल्यू देखेंगे. तो ये नॉर्मल कर्व का जो वैल्यू है -1 का, इट इज -1 + 1 जो भी होगा, दोनों साइड इक्वल डिवीजन होता है मीन से. ये मीन है, इसके दोनों साइड इक्वल डिवीजन होता है. सो 50% इधर होता है, 50% उधर होता है. तो इसका फ्रॉम टेबल वैल्यू नॉर्मल कर्व टेबल वैल्यू is of -1 sigma is 13.413. ठीक है, और 0.6 का टेबल वैल्यू ऑफ 0.6 सिग्मा इज 22.57. हम परसेंटेज में जब लेंगे तो ये 22.57 आया. अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं. सो ये परसेंटेज आया. इसको अगर हम 1000 केस में देखेंगे तो 1000 केस में देखेंगे तो टोटल केस कितना होगा? 567 into 100 into 1000. So it will be 576 cases. Okay, 576 केसेस में क्या आएगा? ये जो वैल्यू है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखिए, ये यहाँ पर है -0.6 जो है सिग्मा, 0.60 सिग्मा जो है, ये 22 कितना एरिया कवर कर रहा है? 22.57%. और इधर -1, तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है, इसमें -1 वाला 34.13% और ये 22.57%, जिसको 0.6 से हमने यहाँ दिखाया है. 0.6 सिग्मा है क्योंकि यहाँ पर 1 सिग्मा है, तो 1 सिग्मा से थोड़ा कम, और यहाँ पर -1 सिग्मा पूरा है. तो ये एरिया नॉर्मल कर्व के अंदर आ रहा है. तो क्या कर रहा है? नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स स्कोर किया 12 से 16 के बीच में? 576 स्टूडेंट्स out of 1000 scored between 12 and 16. Out of 1000 scored between 12 and 16. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, और ये एरिया दिख गया. ये -1 सिग्मा और ये 0.06 सिग्मा यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये 1 सिग्मा से कम है. ये एरिया, ये P जो है ये 0.6, P जो है ये 0.6 सिग्मा दिखा रहा है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ केसेस 1000, mean is given 80 and standard deviation is 16. What we have to find the total number of individuals whose score is below the score 0.40.
40 से जिनका स्कोर पॉइंट बिलो है उतने नंबर्स को बताना है। तो स्कोर इक्विवेलेंट टू रॉ स्कोर 40 इज, ये हमारा क्या है, x दिया हुआ है 40 और मीन दिया, ये x यहाँ पर हम लिख लें, x पूछ रहा है, मीन स्कोर दिया हुआ है 40, x दिया हुआ है 40, m दिया हुआ है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 16। तो हमें फाइंड करना है। तो हमने इसको फॉर्मूले में लिखा, z के फॉर्मूले में z इज इक्वल टू x माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा। सो 40 minus 80 divided by 16, so it is minus 40 divided by 16. So our, when we divide we will get 2.5 sigma. ठीक है, 2.5 सिग्मा। अब क्या करना है कि नॉर्मल करके टेबल में -2.5 मतलब 2.5 सिग्मा का वैल्यू देखना है। ठीक है, 2.5 सिग्मा, ये माइनस नहीं है, पॉइंट है। तो वैल्यू हमें क्या मिला, 4938। नॉर्मल करके टेबल से ये वैल्यू मिला। अब इसका हम 10,000 केस में अगर इसको हम देखेंगे, 10,000 केस में देखने से ही ये परसेंटेज 22.57 या 34.13 आपका है। तो 10,000 केस में ये इतना आ रहा है। मतलब कि अब क्या करना है हमें, मीन यहाँ हमारा क्या है, मीन यहाँ 80 है। नॉर्मल कर्व में मीन जो होता है वो बीच में लिखा होता है। यहाँ मीन हमारा 14.5 था, तो ये मीन का बीच वाला लाइन, यहाँ पर मीन हमारा 80 है, तो ये लाइन हमें इंडिकेट कर रहा है मीन। तो कह रहा है कि मीन एंड -2.5 सिग्मा। अब चूंकि मीन के दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन 80 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से हम चलेंगे तो ये 16 का मल्टीप्लिकेशन है। ये होगा 16 इधर आएगा, फिर 32, 48, 64, फिर 16 5 जा 80, फिर इधर 16 के आगे 16 6 जा 96, 112, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमें कितना फाइंड करना है, -2.5। तो ये -2 है, -2 सिग्मा ये है और 2.5 सिग्मा यहाँ पर होगा, -2.5 सिग्मा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये 2.5 सिग्मा, इसको ब्लैक से ही 2.25 सिग्मा, ये पॉइंट जो कि Q से दिखाया गया, ये पॉइंट जो है ना, ये Q से दिखाया गया है, ये 2.5 सिग्मा का एरिया दिखा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों एरिया 50-50 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ 80 16 का टेबल से शुरू हुआ है, तो 80 बीच में आ रहा है, तो 50% एरिया इधर, 50% एरिया इधर। तो इसमें हम 50 में से 49.38 जो टेबल वैल्यू आया है उसको माइनस करेंगे, तो हमें कितना केस मिला, 50 से माइनस करने पर ये 62% केस मिला। ठीक है, ये आया हमें 0.62 इंटू 1000 केसेस में बाई 100 करेंगे, तो वी विल गेट 6.2 केसेस। ओके, तो ये क्या है कि 6.2 केसेस जो है वो 40 से कम स्कोर करेंगे। हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कितने नंबर हैं, 6.2, तो 6.2 इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, इसलिए 6 इंडिविजुअल्स ओनली। आंसर होगा 6 इंडिविजुअल हैं जो कि 40 से कम स्कोर करेंगे। So that's all for today. Thank you.